Good morning, everyone. This is the sum we will be doing now. A and B were partners sharing profits and losses in the ratio 3 is to 1. So A and B will be sharing profit in the ratio 3 is to 1, and C and D were partners sharing equally. Means A and B ka profit sharing ratio is 3 is to 1. C and D were partners sharing profits equally. Now the capital account is given. Capital account is given for A and B. It is 30,000. For C and D, it is 25,000 and 32,000. These are the capitals given. And in the liability side, we have creditors. We have creditors, bills payable, and outstanding rent. In the asset side, we have goodwill, plant and machinery, furniture, stock, debtor, fixtures, cash. Now the firms are amalgamated on the following terms. The firms are amalgamated on the following terms. Outstanding rent was paid in fully by the respective firms. Now, what do you mean by this? The outstanding rent, which we can see, was paid by the respective firms. मतलब न्यू फर्म इसको नहीं लेके जाएगा, ये पीसी में नहीं आएगा, इसको पे करना है. द फर्म हैज पेड. सो जितना भी हमारे पास कैश है उसमें से व्हाट वी विल डू, 3,400 में से 2,000 for will be used to pay the outstanding rent of A and B, and from 3,300 cash 1,500 will be used to pay the outstanding rent of C and D. They have told na outstanding rent was paid in fully by the respective firm. तो कहाँ से पे करेगा firm? उनके पैसों से पे करेगा. तो इस तरह से we will be doing कैश में से ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो है दैट वी विल बी पेइंग, एंड रिमेनिंग कैश विल बी टेकन इन द परचेज कंसिडरेशन. So here what is given, creditors of both the firms were taken by the new firm at a discount of 5%. So creditors जब हम calculate करेंगे तो we have to calculate discount of 5%. Then plant and machinery is subject to 5% depreciation. So plant and machinery may we have to calculate depreciation. And then the furniture of C and D was sold in the market for rupees 8,000. So what will happen? तो जो फर्नीचर है सी एंड डी का दैट इज सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा फॉर 8,000, एंड दैट कैश वी हैव टू इंक्लूड इन द पीसी. And furniture of A and B was not taken over by the new firm. मतलब A and B का जो furniture है that will be not taken over by the new firm. If not taken over means it will not come in the purchase consideration. इसके बाद फिक्सचर वॉज नॉट टेकन ओवर. सिर्फ फिक्सचर जो असेट है वो भी न्यू फर्म नहीं लेके जा रहा है. हम हाईलाइटिंग इट, मतलब ये भी पीसी में नहीं आएगा. Stock of A and B was valued at rupees 22,100. The new value is given for stock 22,100, and that of C and D was valued at 21,000. The stock ka new value is given for A and B and C and D. Then goodwill ka naya value is given. Goodwill of A and B was valued 6,000 and C and D was valued 8,000. Goodwill account, this one is very important.
गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी रिटेन्ड इन द न्यू फर्म. मतलब जो हम लोग गुडविल आया है 6,000 and 8,000 विच इज इक्वल टू 14,000, 6 + 8 14,000. ये गुडविल जो है ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए. क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म. मीन्स हमें गुडविल को राइट ऑफ करना है. इन द न्यू बुक्स व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू कैंसल द गुडविल. हम क्या करेंगे, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे. वो कैसे करना है दैट आई विल शो यू when we will be doing the sum. Capital of each partner in the new firm is to be maintained at rupees 25,000. Means new firm में जो नया capital होगा it will be 25,000 by bringing cash or paying cash as the केस में भी. मतलब किसी के पास अगर ऑलरेडी कैपिटल 25,000 के ऊपर है तो ऊपर का पैसा दे विल टेक टू देयर होम. एंड अगर 25,000 से कम है तो दे विल गेट दैट बैलेंस अमाउंट फ्रॉम देयर होम. तो 25,000 होना चाहिए. अगर कम है तो घर से दे विल ब्रिंग, अगर ज्यादा है तो दे विल विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस बाय कैश. तो जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें हम टू कैश या बाई कैश लिख के वी विल बी एडजस्टिंग. सो यू आर रिक्वायर्ड to prepare, you are required to prepare realization account, partners capital account and balance sheet. Okay, so but the first step in amalgamation will always be calculation of purchase consideration. So here what we will write, all assets to be taken over by new firm, taken over by new firm in what value, revised or book value, revised or book value. Now we will see which is the first asset given in the question. It is goodwill and goodwill का नया value दिया है 6,000 and 8,000. So we'll write here goodwill, क्या वैल्यू है गुडविल का पीसी में 6,000 and then C&D का they have given 8,000. when we add both हमें कितना मिलेगा, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो we will get how much, 14,000. when we will add both we will get 14,000. same way goodwill के बाद let us see what other asset is there. plant and machinery, and plant and machinery में 5% depreciation है. so 20,000 में 5% depreciation निकालो एंड फिर 27,000 में भी 5% depreciation निकालो. so we'll write here plant and machinery, plant and machinery 20,000 minus 5%, 5% is 1,000. so 20,000 minus 5% हमें 19,000 आ जाएगा. 27,000 में भी minus 5% करो, you will get 26,650. when we will add both how much will we get, we will get 44,650. is it correct? 27,000 minus 5%, are you getting 25,650? after मशीनरी वी हैव फर्नीचर. फर्नीचर बोला गया है C&D का फर्नीचर 9,000 का सेल कर दिया 8,000 में. एंड A&B फर्नीचर नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म. तो सेल कर दिया एंड नॉट टू बी टेकन ओवर मीन्स फर्नीचर विल नॉट बी एबल टू कम इन द PC. फर्नीचर विल नॉट कम इन द PC. देन व्हाट वी हैव, स्टॉक है. स्टॉक का नया वैल्यू क्या है, see we have to carefully read. A and B का स्टॉक का वैल्यू है 22,100 एंड C and D का वैल्यू है 21,000. सो स्टॉक का नया वैल्यू गिवन, सो हम ओल्ड वैल्यू नहीं लेंगे. स्टॉक का नया वैल्यू है, हाउ मच इज द न्यू वैल्यू, 22,100
and for C and D it is 21,000. Now when we add both, how much we will get? 22,100 and 21,000. Are we getting 43,100? Then after stock, what else do we have? स्टॉक के बाद डेटर्स है. डेटर्स के बारे में इज देयर एनीथिंग गिवन? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसा कुछ बोला आरडीडी क्रिएट करने? नथिंग इज टोल्ड. मतलब डेटर का ओल्ड वैल्यू जो है वो ही लेना है, 19,000 एंड 17,000. So we will go to the question, and after stock we will write debtors, and that amount of debtors is 19,000 and 17,000. We have to add both of them. जब दोनों को ऐड करेंगे तो it will become 36,000. डेटर्स के बाद वी हैव फिक्सचर्स. फिक्सचर्स के बारे में क्वेश्चन में दिया है नॉट टू बी टेकन ओवर बाय न्यू फर्म. मतलब फिक्सचर विल नॉट कम इन द PC. Fixture will not come in the PC because it is not taken over by the new firm. It is not taken over, so it will not come. So यहाँ पे what we will do, फिक्सचर के बाद वी हैव कैश बैलेंस. तो कैश का बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो वी विल हैव टू शो 3,400 का कैश है, पर क्वेश्चन का पहला लाइन दैट आउटस्टैंडिंग रेंट हैज टू बी पेड बाय द रेस्पेक्टिव फर्म्स. फर्म्स अगर आउटस्टैंडिंग रेंट पे करेगा तो कैश बैलेंस उनका कम हो जाएगा. So 3,400 में outstanding rent is 2,000. So outstanding rent is 2,000. So 3,400 के कैश में outstanding rent is 2,000. So 3,400 minus 2,000 करेंगे तो 1,400 बचेगा. So cash कितना बचेगा? So we will show here the working for cash. कैश के लिए वी विल हैव टू शो द वर्किंग. सो यहाँ 3,400 वॉज देयर, जिसमें से हाउ मच पे किया? 2,000 पे कर दिया फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट. दिस इज फॉर विच कंपनी? दिस इज फॉर ए बी. दिस इज फॉर ए बी. तो ए बी में हमने 3,400 में 2,000 वी हैव 2,000 वी हैव पेड. तो कितना कैश बचेगा? 1,400. करेक्ट. 3,400 कैश वॉज देयर, 2,000 आउटस्टैंडिंग रेंट पे करने में यूज किया, तो 1,400 बचेगा. सेम वे हियर 3,300 इज द कैश इन CND. CND का कैश है 3,300, बट हमने कितना पैसा आउटस्टैंडिंग रेंट का पे करेंगे? 1,500. तो कितना पैसा बचेगा? एक और चीज, व्हेन फर्नीचर इज सोल्ड वी आर गेटिंग 8,000. CND का फर्नीचर जब बेचा तो हमें 3,300 कैश तो था, साथ में वी आर गेटिंग 8,000 कैश एंड वी आर पेइंग 1,500 कैश बैक. सो लेट अस सी हाउ मच कैश हमारे पास रहेगा फॉर CND. तो यहाँ पे ही लिख लेते हैं फॉर CND क्या हो रहा है? हाउ मच कैश वॉज देयर? 3,300, जिसमें से प्लस करेंगे 8,000, फिर माइनस करेंगे 1,500. मीन्स 3,300 कैश बैलेंस, 8,000 by selling the furniture, and 1,500 is by minus the amount paid for outstanding rent. So how much is it coming? 3,300 plus 8,000 minus 1,500. So we will get how much? How much are we getting? 9,800. 9,800.
800. सो ये दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 11,200. 11,200. So after this, all the assets are over. सारे assets हो गए. Goodwill भी हमने starting में record कर लिया. All assets are done. Now what we will do? We will take the total of this. We will take the total, and then we will less B all external liabilities taken over by new firm in revise if given, नहीं तो book value. So what liabilities we have? Let us see. We have creditors. कैपिटल को छोड़ के, बिकॉज कैपिटल वी विल शो इन द कैपिटल अकाउंट, वी हैव क्रेडिटर्स. एंड क्वेश्चन में बोला है क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट देना है. सो क्रेडिटर 10,000 and 15,000, we have to give discount. So creditors में 5% discount करना है. How much is the amount of creditors? 10,000 में 5% discount is 500. So this will become 9,500. And here 15,000 maybe 5% discount, it will be 750. So this will become 14,250. दोनों को ऐड करेंगे तो it will be 23,750. Same way, after creditors, any other liability is there? Bills payable is there and outstanding rent is there. But outstanding rent तो पे कर दिया रेस्पेक्टिव फर्म्स ने, कैश से पे कर दिया तो इट विल नॉट कम इन द पीसी. सो व्हाट विल कम? बिल्स पेबल विल कम. बिल्स पेबल का नया वैल्यू नहीं दिया तो ओल्ड वैल्यू ही लिखेंगे. सो व्हाट एल्स विल कम इन द पीसी? बिल्स पेबल विल कम. आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं आ सकता बिकॉज वो तो पेड हो गया. सो आउटस्टैंडिंग बिल्स पेबल का अमाउंट क्या है? इट इज 4,000 and 8,000 and 8,000. दोनों को ऐड किया तो इट विल बिकम 12,000. दोनों को ऐड किया है तो इट विल बिकम 12,000. Now what do we want? We want the total. Of B. So ये this is the total of A. Do the total and tell me what answer are you getting? Is it coming 67,500? And this one is coming 81,450. Here it is coming 13,500 and here it is coming 22,250. Now we want the PC. PC कैसे मिलेगा? Purchase consideration we will get जब हम A minus B करेंगे. So A minus B, 67,500 minus 13,500, we get 54,000. Same way 81,450 minus 22,250, we get 59,200. So we have got the PC for both the firm. Now what we will do, एक बार PC मिल गया, हमें दोनों का PC चाहिए. टोटल इज नॉट इम्पॉर्टेंट. टोटल कॉलम हम किधर भी, ये टोटल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बस ये दोनों का, ये दोनों कॉलम का असेट्स एंड लाइबिलिटी, सो दैट वी आर एबल टू कैलकुलेट द पीसी. सो एंड द टोटल कॉलम बिकॉज ये बैलेंस शीट में लिखने को चाहिए. दैट्स इट. सो वो हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ व्हाट वी विल डू, हमारा पहला स्टेप, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी, बाय बैलेंस बॉट डाउन, we will write down the capital balances of all the four partners, 30,000, 25,000 and 32,000. So यहाँ पे हम लिखेंगे, we will first write
30,000, दोनों का 30,000 है, and then it is 25,000 and 32,000, 25,000 and 32,000 given in the question. Capital balances given in the question. Now we will move forward to our realization account. So realization account में debit side में जाएंगे to various assets, and what we will do, हमें जो भी asset दिया है that we will copy, जो भी asset दिया है we will copy here. दिस इज अवर सेम, जैसे बैलेंस शीट में दिया है वैसे कॉपी करेंगे. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, व्हाट वी विल डू, वी विल कॉपी दिस अमाउंट, दोनों का अमाउंट चाहिए हमें, सो हम वो कॉपी करेंगे. एक लाइन नीचे चाहिए. सो वी हैव रिटन ऑल द अमाउंट. लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है. सी हियर इन द सी डी का हमने जब फर्नीचर सेल किया तो देर इज सम एडिशनल बैलेंस ऑफ कैश दैट वी विल सी लेटर ऑन. तो यहाँ तक ये सब लिख लिया. अभी लिखते बाय वेरियस लाइबिलिटीज, बाय वेरियस लाइबिलिटीज. तो बाय वेरियस लाइबिलिटीज में हमारे पास कौन सा लाइबिलिटी है, लेट अस सी. एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन सा है कैपिटल को छोड़ के. योर रिजर्व इज नॉट देयर इन दिस क्वेश्चन. सो हमने क्या किया यहाँ पे, कंट्रोल वी, कॉपी कर दिया, तीनों एक के नीचे एक लिखा. अभी हमें चाहिए तीनों का अमाउंट. और यहाँ पे भी तीनों का अमाउंट, ये लिख लिया. पहला हमारा यही स्टेप रहता है. हम क्या करते, वी राइट ऑल द असेट्स इन द डेबिट साइड. बैलेंस शीट वैल्यू में वी राइट ऑल द कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के ऑल द लाइबिलिटीज इन द क्रेडिट साइड. अब अवर नेक्स्ट स्टेप इज टू रिकॉर्ड द पीसी बाय न्यू फर्म. बाय न्यू फर्म पीसी का अमाउंट क्या मिला है, 54,000 and 59,200. So we have got the PC. Now इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये हमारा PC ड्यू है. दिस इज अवर PC ड्यू. तो बाई न्यू फर्म, तो हम लोग न्यू फर्म में जाके लिखेंगे टू रियलाइजेशन. टू रियलाइजेशन अमाउंट क्या है 54,000 एंड सेकेंड वाले का अमाउंट है 59,200. सो हमने ये इफेक्ट भी दे दिया. अब इसके बाद व्हाट वी विल डू, इसके बाद वी विल चेक इज देयर एनी असेट नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म. इज देयर एनी असेट नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म. हमने हाईलाइट करके रखा है. देर आर टू असेट्स, देर आर टू असेट्स. एक तो इट इज दिस वन, व्हाट यू से, एक तो इट इज फर्नीचर एंड सेकेंड इट इज फिक्सचर. तो फर्नीचर को सेल किया
एंड फिक्सचर को फर्नीचर को नहीं लेके गए। ए एंड बी का फर्नीचर, पहले ए एंड बी का देखते। ए एंड बी का फर्नीचर वॉज नॉट टेकन ओवर। ए एंड बी का फर्नीचर वॉज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म एंड फिक्सचर ऑल्सो वॉज नॉट टेकन ओवर। देखो फर्नीचर एंड फिक्सचर दोनों नहीं लेके गए हैं ए एंड बी का। तो पहले ए एंड बी का सॉल्व करते हैं। तो ए एंड बी का फर्नीचर, ए एंड बी का फर्नीचर इज हाउ मच? 8,000। ए एंड बी का फर्नीचर इज 8,000 and and fixture is 1,600. furniture is 8,000 and fixture is 1,600। ये नया फर्म नहीं लेके गया, तो ये किसको मिलेगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको मिलेगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है पार्टनर? ए और बी, दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ तुम लोग को ध्यान में रहने के लिए, फर्नीचर एंड फिक्सचर दोनों को ऐड करके लेना है। तो फर्नीचर का अमाउंट है 8,000 एंड फिक्सचर का अमाउंट है 1,600। दोनों को ऐड करो, हाउ मच इज इट कमिंग? 9,600। ए एंड बी में जो पार्टनर्स है उनका रेशो क्या है? ये दोनों पार्टनर्स को देना है। कौन से रेशो में देना पड़ेगा? 3:1 में, बिकॉज पार्टनर्स का रेशो इज 3:1। सो 3:1 रेशो में डू वन थिंग, 3:1 टेक योर कैलसी 3:1। चाहिए तो यहाँ पे तुमको फर्नीचर एंड फिक्शन में नहीं लिखूँ, तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है, तो आई कैन ऑल्सो राइट 8। what is the amount? It is 8,000, 8,000, 8,000 and fixture is 1,600। fixture is 1,600। तो ये दोनों को ऐड करना है। कौन से रेशो में? 3:1, मतलब 3/4 and this one is 1/4। तो इसमें डिवाइड करके बताओ हाउ मच। सी डी का लिखेंगे पहले, फर्स्ट लेटर सॉल्व फॉर ए एंड बी, देन वी विल डू फॉर सी एंड डी। सो ए एंड बी का कितना आ रहा है? 9,600 को दोनों को ऐड करके प्लीज ऐड बोथ ऑफ देम। कितना आ रहा है? 9,600 को डिवाइड करो, कितना आंसर आ रहा है? 9,600 into 3 divided by 4, are you getting 7,200? एंड दूसरे का कितना मिल रहा है? 2,400। नाउ वी हैव टू डू फॉर अदर 2 पार्टनर्स। इधर मैंने सिर्फ तुम लोग के लिखने के लिए इधर लिखा था फिक्सचर, this is for fixture and this was for furniture। now there is other business also, C and D। तो सी एंड डी के बारे में क्या बोला है? जो फर्नीचर था सी एंड डी का वो तो सेल हो गया। जो फर्नीचर था सी एंड डी का दैट गॉट सोल्ड फॉर 8,000। सो हमारे कैश बैलेंस में हमें है ना, सी एंड डी के कैश बैलेंस में हमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। सी एंड डी के कैश बैलेंस में ये 8,000 चला गया है। सी एंड डी के कैश बैलेंस में ये 8,000 चला गया है। एंड वन थिंग वो बाद में देखते, एक और चीज है, फिक्सचर जो है, फिक्सचर्स हैव नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म। तो फिक्सचर्स जो है वो पार्टनर्स को डिवाइड करना है। सी एंड डी का हमें क्या करना पड़ेगा? फर्नीचर तो पार्टनर्स लेके नहीं गए, फर्नीचर तो सेल हो गया। what happened to the fixture? Fixture was not taken over by the new firm and furniture का क्या हुआ? ध्यान से सुनो, furniture was sold in the market। sold हुआ मतलब partners did not take it home, it got sold and the cash we have put it in the PC। कैश जो मिला था वो पार्टनर्स में डिवाइड नहीं हुआ, वो नया फर्म लेके गया।
सो पार्टनर्स को फर्नीचर पे तो कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज वो तो सेल हो गया एंड इट वेंट इन द पीसी, नया फर्म लेके गया वो कैश। सो क्या हुआ, फिक्सचर के बारे में क्या हुआ, फिक्सचर वॉज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म एंड फिक्सचर हमने पीसी में भी नहीं लिया, पीसी में फिक्सचर नहीं है, तो फिक्सचर जो है वो पार्टनर्स घर पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आई विल राइट, यहाँ पे आई विल राइट फॉर फॉर सी डी, सी डी हमें क्या लिखना है, फिक्सचर लिखना है, सिर्फ फिक्सचर का अमाउंट लिखना है। एंड सी डी में ओनर कौन है, सी एंड डी, एंड फिक्सचर का अमाउंट क्या है 1200 एंड दीज बोथ आर इक्वल पार्टनर्स, दोनों इक्वल पार्टनर्स है। तो इनके बीच में कैसे डिवाइड होगा, फिक्सचर इक्वली डिवाइड होगा 1:1 में। तो 1200 का फिक्सचर है, फिक्सचर कितने का है 1200 का है, तो उसको इक्वली वी हैव टू डिवाइड। सो इक्वली डिवाइड करेंगे 1200 को, तो कितना आएगा, इक्वली डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 600 एंड 600। नाउ एज आई टोल्ड यू, इन द कैश, इन द कैश ऑफ सी डी, यहाँ पे मैं बताती हूँ सी डी का जो कैश है वो 3300 प्लस फर्नीचर को बेच के 8000 भी आया, फर्नीचर को बेच के 8000 भी आया। तो ऐड करो कितना हो जाएगा 8000 plus 3300, this will become 11300, this will become 11300। गॉट माई पॉइंट, जो कैश है वो इंक्रीज हो गया, कैसे इंक्रीज हो गया, बिकॉज फर्नीचर वॉज सोल्ड इन द मार्केट। सो इसके वजह से सीडी का जो है कैश इंक्रीज हो गया। तो हमने 3300 का जो कैश था उसमें 8000 ऐड किया बिकॉज फर्नीचर वॉज सोल्ड इन द मार्केट फॉर 8000। एनी कंफ्यूजन हियर? Now what is remaining, is there any liability not taken over? But वो तो हमने already पे कर दिया कैश से, so वो पार्टनर्स नहीं लेके जा रहे, बिजनेस कैश में सेटल हो गया। Now what we will do is we will have to close the realization account, we will have to close the realization account। so realization account को close करते वक्त I want that you all कैलकुलेट द बोथ द साइड टोटल, कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। आई एम डूइंग फॉर द क्रेडिट ऑफ, आई गॉट इट 84,900 and here what are you getting 10,000 plus do for the debit also 2,000 plus 54,000 plus 7,200 plus 2,400, it is coming 79,600। नाउ ये साइड का देखो जरा, डेबिट साइड का क्या आ रहा है, डेबिट साइड का क्या टोटल रहेगा, एक 76,000 है, 81,500 है। तो भी यहाँ पे थोड़ा देखो कैश इंक्रीज हुआ है, जस्ट सी कौन सा साइड हैवी है, जस्ट सी कौन सा साइड हैवी है एंड टेल मी क्या हो रहा है, प्रॉफिट है क्या लॉस है, जस्ट सी वेदर इट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस। कितना है 76,000 है डेबिट साइड का, दिस इज 76,000। तो प्रॉफिट हुआ ना, क्रेडिट इज मोर, क्रेडिट इज मोर, तो यहाँ लिखेंगे 79,600 और जो भी प्रॉफिट है विल गो टू टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी। तो ये क्या है, इधर आया मतलब इट्स अ प्रॉफिट, इधर आया मतलब इट्स अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का है 76,000 में से 79,000 में से 76 वी माइनस, तो वी गॉट 3,600। same way here also we can see that which side is heavy, credit side is heavy, is the credit side heavy?
क्रेडिट साइड इज हैवी, कितना टोटल आ रहा है, मेरे को प्रॉफिट का अमाउंट बताओ. सी यू ऑल आर बिकमिंग वेरी लेजी, यू ऑल आर नॉट गिविंग आंसर्स. इसके वजह से माई टाइम इज गेटिंग वेस्टेड बिकॉज यू ऑल आर नॉट गिविंग आंसर्स. 89,500 मीन्स ये साइड हैवी है. 89,500 is coming. One more thing, हाँ, one more thing, I'm very sorry, very sorry. ये है ना 8,000 हम नहीं लिखते, let it be. 8,000 ऑटोमेटिकली रिकंसाइल होने दो. let make it simple. ये जो मैंने तुम लोग को बोला था ना 8,000 यहाँ पे लिखना है, उसको हम लोग नहीं लिखते 8,000 को. लेट इट बी देयर कैश, क्योंकि नया फर्म को दे दिया है, लिख के मतलब नहीं है इधर, बिकॉज हमने ऑलरेडी नया फर्म को दे दिया है. तो दो जगह पे लिखना पड़ेगा. अगर इधर लिखेंगे ना कैश 8,000, तो यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा कि फर्नीचर से कैश आया है. वी हैव टू शो इट एट टू प्लेसेस. मतलब अगर इधर मैंने 8,000 ऐड किया ना, तो मुझे इधर भी दिखाना पड़ेगा यही 8,000, मुझे इधर भी दिखाना पड़ेगा बाई कैश बैंक, बाई कैश करके सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर करके मुझे इधर भी दिखाना पड़ेगा 8,000. यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी 8,000 दिखाना पड़ेगा, और फिर इधर भी 8,000 उसको ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ से यहाँ वो उसको दिखाते ही नहीं है. उससे अच्छा दोनों जगह दिखाने से अच्छा व्हाट वी विल डू, वी विल इग्नोर. कैश का बारे में दिखाते ही नहीं, बिकॉज इट इज गोइंग टू वेयर, इट इज गोइंग टू द न्यू फर्म, इट इज गोइंग टू द न्यू फर्म. इसलिए लेट अस नॉट शो द कैश. मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है. लेट अस कीप इट सिंपल. क्या कैश माइनस करके कितना प्रॉफिट आ रहा है देखो. 81,500 एंड 84,900. कितना प्रॉफिट इज कमिंग. 3,400 आ रहा है क्या. 3,400. तो जरा डिवाइड करो व्हाट यू आर गेटिंग. सी डिवाइड करो व्हाट यू आर गेटिंग. व्हाट यू आर गेटिंग 3:1 प्रॉफिट है. तो 3:1 में डिवाइड करो ए और बी का प्रॉफिट. 3 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4, इन यहाँ पे इक्वल, इक्वल. सो क्या आंसर आ रहा है. ए का 2,700 एंड इसका 900. एंड इधर व्हाट अबाउट दिस फर्म, इट इज कमिंग 1,700. इक्वली डिवाइड करने पे 1,700. सो नाउ वी हैव टू गिव द ऑपोजिट इफेक्ट बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट. सो इधर 2,700, here 900, here 1,700 and here 1,700. सो ये भी हो गया, प्रॉफिट डिवाइड कर दिया. नाउ व्हाट वी विल डू, इसको क्लोज करो. क्लोज दिस अकाउंट. हाउ मच आर यू गेटिंग. 33,700, 33,700 ना. This is 30,900, this is 32,700. एक चीज हमने यहाँ पे दिया है क्या, एक इफेक्ट हमने पार्टनर्स का दिया नहीं है इधर. सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक इफेक्ट हमने इधर दिया नहीं है. दैट इज टू रियलाइजेशन. ये हमें ना जैसे वी डू द वन स्टेप वी हैव टू गिव द अदर स्टेप का इफेक्ट. देखो ये इफेक्ट तो हमने दिया ही नहीं है पार्टनर्स कैपिटल का. दिस इज 7,200, दिस इज 2,400, दिस इज 600, दिस इज 600. सो दिस वन इज कितना 26
700, 26,700. सो यही साइड तो ज़्यादा दिख रहा है. 33,700, 32, 30,900. गिव मी द फाइनल आंसर. गिव मी द फाइनल आंसर. क्योंकि यहाँ पे जो भी बैलेंस होगा वो कहाँ जाएगा? न्यू फॉर्म में जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल से दिस विल गो इन द न्यू फॉर्म. सो हाउ मच इट विल कम? माइनस करो. हाउ मच इट विल कम? 25,500, 28,500. ये 600 माइनस करेंगे तो 26,100. यहाँ पे 600 माइनस करेंगे तो 33,100. करेक्ट. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट? नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट? ये जो है टू न्यू फॉर्म इधर हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो यहाँ पे रहेगा A, B, C and D. So 25,500, 28,500 and C and D में 26,100 and 33,100. Now see whether this is getting tallied. It will get tallied. 59,200, 25, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54,000. ये दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 52,200. Our new firm got tallied. न्यू फर्म गॉट टैलीड. तो इसके बाद हम लोग को आना है अभी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. जो पार्टनर का कैपिटल मिला ना, वो अभी जो मिला न्यू फर्म में, दैट बैलेंस वी हैव टू ट्रांसफर हियर बाय बैलेंस बॉट डाउन. कितना मिला? 25,500, 28,500 एंड व्हाट हैव वी गॉट? ट्रांसफर करेंगे तो 26,100 एंड 33,100. अब क्वेश्चन में नया कैपिटल दिया है. नया कैपिटल क्या दिया है? पार्टनर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर ऑफ न्यू फर्म विल बी 25,000. सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम न्यू जो कैपिटल है वो लिखेंगे. तो न्यू कैपिटल यहाँ आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन. व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स? इट विल बी 25,000. मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं सबके सब क्या लाएंगे? 25,000 दे विल गेट. और ये 25,000 और एक चीज बोला गया है कि जो भी डिफरेंस है उनके कैपिटल का, अगर यहाँ पे ए के पास 25,500 ऑलरेडी बिजनेस में है बट उसको लाना है से 25,000. सो ऊपर का पैसा ही विल टेक इज होम. ये भी 28,500 है पर लाना सिर्फ 25,000 है, तो ऊपर का पैसा ही विल टेक टू इज होम. दिस ऑल्सो सेम वे. लेकिन ये करने से पहले हमारे पास क्वेश्चन में एक और पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा है. गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ द ओल्ड फर्म. मीन्स हमें गुडविल को राइट ऑफ करना है. चेक इन द पीसी. गुडविल कितना है? टोटल गुडविल इज 14,000. गुडविल इज हाउ मच? 14,000. गुडविल इज 14,000. सो ये गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है, गुडविल को कैंसल करना है. दिस गुडविल शुड नॉट कम इन द बैलेंस शीट असेट साइड. तो पार्टनर्स लोग ये गुडविल का पैसा घर पे लेके जाएंगे. तो पार्टनर्स लोग गुडविल का पैसा घर पे लेके जाएंगे तो क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, ये द अदर साइड वी विल शो टू गुडविल रिटर्न ऑफ. हम गुडविल नहीं रहेगा, मतलब गुडविल रिटेन नहीं करना मीन्स गुडविल कैंसल करना है. बट अब ये 14,000 को चारों में कैसे दे? 14,000 को नया रेशो नहीं दिया है. व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन वी विल डिवाइड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर. समझ में आया? ये जो गुडविल है, दिस गुडविल
हैज टू बी डिवाइडेड, हैज टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब जो गुडविल का पैसा चारों को मिला है न्यू फर्म को, दैट गुडविल हैज टू बी रिटर्न ऑफ, एंड वो गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो हमें न्यू रेशो मालूम होना चाहिए। पर जब न्यू रेशो क्वेश्चन में नहीं दिया तो वी विल अज्यूम दैट द न्यू रेशो इज 1:1:1:1:1, मतलब चारों पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स। तो गुडविल को 14,000 को equally write off karo, how much are you getting? Are you getting 3,500, 3,500, 3,500? So this we will 3,500। अब बंद करना है, अब जरा बंद करो। देखो कौन सा साइड हैवी है, दिस साइड इज हैवी, 28,500, दिस साइड इज हैवी 20, ये तो इक्वल है 28,500, यहाँ दिस साइड इज हैवी 28,500। लास्ट का कौन सा साइड हैवी है, क्रेडिट साइड इज हैवी 33,100, 33,100। सो क्या करना है हियर, जो भी डिफरेंस आएगा, डेबिट में डिफरेंस आया तो टू कैश बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो बाई कैश बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन में बोला गया है दैट वॉट एवर बी द डिफरेंस इट शुड बी इन कैश। लास्ट पॉइंट सी, द लास्ट पॉइंट दे हैव टोल्ड कि by capital of each partner be at 25,000 by bringing cash or paying cash as the case may be। मतलब एक्स्ट्रा पैसा है तो घर लेके जाओ, कम पैसा है तो घर से लेके आओ। तो उस हिसाब से कैश का बैलेंस इधर कितना आएगा, 28,500 माइनस करो कितना कैश का बैलेंस आएगा, 3,000, एंड बी का तो टैली हो रहा है, नो डिफरेंस, एंड सी का 28,500 में 28,500 में 26,100 माइनस करो कितना आएगा, 26,100 माइनस करो, हाउ मच आर यू गेटिंग, 2,400। एंड यहाँ पे 33,100 में 28,500 माइनस करो कितना आ रहा है, 33,100 माइनस 28,500, यहाँ पे आ रहा है 4,000, मतलब डी को 4,600 पे। अभी देखो डी का कैपिटल इज मोर, मतलब वो उसको रखना है से 25,000, तो ऊपर का जो पैसा है ही विल टेक बैक टू हिज होम। तो बिजनेस को बी से कुछ पैसा नहीं मिलेगा, ए से मिलेगा 3,000। सी यहाँ पे बाई कैश है, मींस डेबिट, कैश के डेबिट में जाएगा, कैश अकाउंट, इस कैश अकाउंट में जब जाएगा तो बाई विल बिकम टू B's, टू A's कैपिटल, टू C's कैपिटल इन द कैश बुक। मतलब तुम लोग को समझाने के लिए ये जो है, ये जो क्रेडिट साइड में जो कैश है ये बिजनेस में आएगा। मतलब ये लोगों को 28,500 रखना था पर इनका बैलेंस कम है तो ये लोग घर से पैसा लेके आए। ए एंड सी हैज बॉट मनी फ्रॉम हाउस एंड डी विल टेक मनी फ्रॉम बिजनेस टू हिज हाउस। तो हमें कैश का बैलेंस निकालना पड़ेगा लास्ट में। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, देखो इधर सबसे पहले वी विल राइट द कैपिटल, वी विल राइट द कैपिटल ए बी सी एंड डी। कितना कैपिटल रखने बोला है, 25,000, 25,000, 25,000 and 25,000। now our next step will be what, next step go to PC। लेकिन गुडविल नहीं चाहिए, गुडविल को हमने कैंसिल कर दिया। गुडविल के अलावा जो भी असेट है वो लेंगे, गुडविल के अलावा जो भी असेट है वो लेंगे, बिकॉज गुडविल तो राइट ऑफ हो गया। सो उसका अमाउंट भी ले लेंगे पीसी में, टोटल अमाउंट। सो गुडविल को छोड़ के बाकी जो भी असेट है उसका टोटल लेंगे और इधर लिखेंगे।
Now we will go to the liability and we will see liability side में कौन सा liability is there in the PC. So liability side में two liability is there. So we'll go and write and उसका भी total ले लेंगे from the total of the PC. So it will be like this. Now what we will do, कैश का नया बैलेंस लिखना पड़ेगा. तो कैश में ऑलरेडी 11,200 है. कैश में ऑलरेडी 11,200 है जो हमें पीसी में मिला. अब ऐड करेंगे 3,000 जो ए से मिलेगा, फिर ऐड करेंगे 2,400 जो सी से मिलेगा एंड माइनस करेंगे 4,600 जो हमें पे करना है टू डी. सी ए से 3 मिला, इधर से सी से 2,400 एंड डी को वापस करना है 4,600. तो कैश का नया वैल्यू क्या रहेगा? व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ कैश? जस्ट फाइंड आउट. व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ कैश? इज इट कमिंग अ नेगेटिव बैलेंस? देखो हमारे पास नेगेटिव कैश आ रहा है क्या? कैश का क्या बैलेंस आ रहा है? 11,200 plus 3,000 plus 2,400 how much is it coming? No na, how much is it coming? Give me the answer fast. Minus 4,600, this coming 12,000, correct? So अब देखो टैली क्या हो रहा है. नाउ द टैली अमाउंट देखो क्या आ रहा है. 12,000 plus 36,000 plus 43,100 plus 44,650, 1,35,750. Here also 1 lakh plus 23,750 plus 12,000. This coming 1,35,750. Our answer is tallied.